وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کو اس کا اجر دگنا عطا کریں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو. تو جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے گا اور تم سیدھی سیدھی بات کیا کرو. آواز شیرینی گولے ہوئے نہ ہو، نہ لوچدار ہو، ضرورت سے زیادہ باتیں نہ ہوں، نہ اتنی پست ہو کہ سرگوشی معلوم ہو اور نہ ہی اتنی تیز ہو. تاہم ایسا انداز بھی نہ ہونا چاہیے کہ بدتمیزی کی حد کو چھو رہا ہو. اور تم مناسب بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور دورے پہلی جاہلیت کی طرح اپنی سج دج نہ دکھاتی پھرو. اس آیت سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے اصل مقام اس کا گھر ہے. اس کے لیے جہاد، مسجد میں باجماعت نماز اس پر فرض نہیں کی گئی. اس موضوع پر امت میں افراط اور تفریط رواج پا گیا ہے. بہت سے لوگ عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ چلانے کی غیر فطری کوششیں کرتے ہیں اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. عورت کا وقار اس کے اپنے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ رکھا ہے اور گھر ہی اس کے لیے عمل کرنے کی جگہ رکھا ہے. باقی یہ صحیح ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو عورت اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہے، لیکن پالیسی کے طور پر عورت کی ذمہ داری کمانے کی اور باہر کے کاموں کی نہیں ہے.
और तुम जाहिलियत ऊला की तरह सज दज ना दिखाती फिरो। इंसान की फितरत हमेशा एक ही रही है। जब इस्लाम आया तो औरतें बगैर हिजाब के अपनी जीनत दूसरों को दिखाती फिरती थी। तो ए नबी की बीवियों, तुम इस तरह ना किया करो। तबर्रुज से मुराद होता है अपने आप को नुमायां करना, और ये नुमायां करना 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो इंसान की जो फितरी खूबसूरती है, इंसान उसी को नुमायां कर ले। दूसरे, मेकअप, जेवरात, कपड़ों और मेकअप के जरिए अपनी खूबसूरती को नुमायां करे। और तीसरे, अपनी अदाओं के साथ, चाल ढाल के साथ। तो इन तीनों तरीकों में से किसी तरीके को भी तुम इख्तियार ना करो। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। यकीनन अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी को ले जाए ए घर वालों, और तुम्हें अच्छी तरह पाक और साफ कर दे। इस आयत में मुखातिब तो नबी की बीवियों को किया गया है, क्योंकि इस्लाह की तहरीक की इब्तदा आप ही के घर से की गई थी। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो कि मॉडल घर था, तमाम सहाबा और सहाबियात ने वहीं से रजू करना था, लिहाजा पहले हुक्म वहां दिया गया ताकि लोग इससे मानूस हो जाएं। और जब लोग मानूस हो गए तो इसके 1 साल बाद फिर हिजाब की आयत उतर आई। हम सूरा नूर पढ़ चुके हैं। सूरा नूर सूरा अहज़ाब के बाद नाजिल हुई है। सूरा अहज़ाब के ये अहकामात पहले नाजिल हुए हैं, इसके 1 साल बाद जाकर फिर वो अहकामात नाजिल हुए जो कि आम खवातीन के लिए थे, ताकि उनके लिए अमल में आसानी पैदा हो जाए। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि ये अहकामात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए थे, अल्लाह ताला को इन एतराजात का पता था, इसीलिए इसी सूरत में के आखिरी रुकू में आप देखेंगी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आम मुसलमान औरतों को भी हिजाब के लिए खिताब किया है। वो हम अभी पढ़ रहे हैं। और ए अज़वाज मुताहिरात, तुम याद रखो जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयात और हिकमत पढ़ी जा रही हैं, यकीनन अल्लाह ताला बारीक बीन और खबरदार है। अज़वाज मुताहिरात से एक मुतालबा तो ये किया गया कि वो अपनी आवाज को गैर मर्दों से बात करते हुए लोचदार न रखें, अपने घरों में करार पकड़ें और वकार से रहें, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। और इसके अलावा एक मुतालबा मजीद किया गया कि तुम्हारे घरों में जो वही नाजिल होती है, कुरान और हदीस की बातें जो अज़वाज मुताहिरात के घरों में वो देखती हैं या सुनती हैं, क्योंकि एक वो वही होती थी जो आयात की सूरत में नाजिल होती, और एक वो तरीका होता था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पर अमल करके अपना उम्मत के सामने पेश करते थे। तुमने इसको याद रखना है, और न सिर्फ याद रखना है बल्कि तुमने इसको उम्मत को पहुंचाना है। ये अज़वाज मुताहिरात की एक इजाफी ड्यूटी थी जिसको हजरत आयशा ने बड़े बेहतरीन तरीके से पूरा किया। इसके अलावा दूसरी अज़वाज ने भी अपनी अपनी ताकत की हद तक इसे पूरा किया। अल्लाह ताला तो बारीक बीन और खबरदार है। बेशक मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, इस आयत में मुसलमानों की 10 सिफात का जिक्र किया गया है। औरतें और मर्द अमल के एतबार से, जज़ा के एतबार से अल्लाह के यहाँ एक जैसे हैं, और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, सच्चे मर्द, सच्ची औरतें, सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, अल्लाह के आगे खुशू रखने वाले मर्द और खुशू रखने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह ताला को ज्यादा याद करने वाले मर्द और अल्लाह को ज्यादा याद करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने इन सब के लिए बख्शिश का और बहुत बड़े अजर का वादा किया है। किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं, ना ही किसी मोमिन मर्द के लिए, न किसी मोमिन औरत के लिए, जब अल्लाह और उसके रसूल उसके लिए एक मामले का फैसला कर दें कि उसके लिए अपने मामले में कुछ इख्तियार बाकी रहे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। आपने उन्हें अपना बेटा बना लिया था और लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे थे। असल बात यह है कि हजरत ज़ैद को हजरत खदीजा के गुलाम थे। हजरत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे। इनकी आदतें बड़ी अच्छी थी,
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। इनके बाप और इनके चचा को पता चला कि हमारा बेटा और हमारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है। वो इनके पास आए और अपने बेटे का मुतालबा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप अपना बेटा, मैं आपके सामने बेटा पेश कर देता हूँ, अगर वो चाहे तो आप उसे ले जा सकते हैं। अब हजरत जैद ने बाप और चाचा से मुलाकात के बाद उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। आजादी के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को तरजीह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार आया, बैतुल्लाह में जाके ऐलान कर दिया, आज से जैद मेरा बेटा है। लोग उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहने लग पड़े। अब इन्हीं जैद बिन मोहम्मद के लिए आपने हजरत ज़ैनब बिनते जहश, जो कि आपकी फूफीजाद बहन थी, उनका रिश्ता तलब किया। इतनी बात आपको बता दूं, जब वो यही आयात, ये जो अभी हम पढ़कर आए हैं कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, लोगों ने फिर दोबारा जैद बिन मोहम्मद की बजाय उन्हें जैद बिन हारिसा ही कहना शुरू कर दिया। अब उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीजाद बहन का रिश्ता तलब किया। अब आपका खानदान चूंकि बड़ा नस्ब के एतबार से बड़ा बरतर खानदान था, हजरत जैनब खुद ही, हजरत जैनब और हजरत जैनब के खानदान वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। हजरत जैनब खुद राजी नहीं थे। ये आयत उतर आई कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए जब अल्लाह और उसके रसूल कुछ फैसला कर दें तो उन्हें अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। अब जब ये आयत उतर आई तो हजरत जैनब और उनका खानदान इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो वो वाज़े गुमराही में चला गया। असल मकसद ये था, अरब लोग मुतबन्ना बनाते, मुंह बोला बेटा बनाते और मुंह बोले बेटे को सगे बेटों की तरह इख्तियारात देते। उन्हें सगे बेटों की तरह उन्हें अपनी जायदाद का भी वारिस बनाते, उनकी बीवी से निकाह करना हराम समझते और बिल्कुल सगे बेटों की तरह ही उन्हें रखते। अल्लाह ताला चाहते थे कि ये जो गलत रस्म है ये खत्म कर दी जाए, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया था कि तुमने ये रस्म खत्म करनी है। और उसका तरीका ये बनाया कि ज़ैनब बिनते जहश का निकाह इनसे कराया। अब हुआ क्या कि खानदानी मरातब में चूंकि फर्क था, हजरत ज़ैनब और हजरत ज़ैद में निबाह नहीं हो सका। 9 महीनों के बाद तलाक हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया था कि जब ये उसको तलाक दे देंगे तुम ज़ैनब बिनते जहश से निकाह करोगे, ताकि लोगों के अंदर ये रस्म खत्म हो जाए कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करना हराम है। हजरत ज़ैद आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी हजरत ज़ैनब हजरत ज़ैद की मुतल्लका थी, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप उनकी बीवी से निकाह करके इस रस्म को खत्म करें। इसलिए ये बड़ी प्लानिंग के साथ निकाह हो रहा था। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो तो वाज़े गुमराही में जा पड़ा। जब आप उस शख्स को जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया था और आपने भी उस पर इनाम किया था कि तू अपनी बीवी अपने पास रखो, हजरत ज़ैद का जिक्र है। अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत बख्शी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ उनको इतना एहसान किया था कि अपनी फूफीजाद बहन का रिश्ता उन्हें लेकर दिया था कि तू अल्लाह से डर और अपनी बीवी अपने पास रख। और आप अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ताला जाहिर करना चाहता था। हजरत ज़ैद आपसे आकर हजरत ज़ैनब की शिकायत करते और तलाक देने का इरादा जाहिर फरमाते, तो आप ये फरमाते अल्लाह से डरो, अपनी बीवी से निबाह की कोशिश करो। इससे मकसद ये था कि जब हजरत ज़ैद तलाक देंगे तो हजरत ज़ैनब को मुझे निकाह में लाना होगा और इस वक्त मुझे लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी। यही वो बात थी जिसे आप अपने दिल में छुपाए हुए थे और आप लोगों से डरते थे, और अल्लाह ताला ज्यादा हक रखता है कि आप अल्लाह से डरे। तो जब ज़ैद ने इस औरत से अपनी हाजत पूरी कर दी, तलाक दे दी, इद्दत भी पूरी हो गई, तो हमने उनका निकाह आपसे कर दिया। किसका? हजरत ज़ैनब का। जब उनकी इद्दत पूरी हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद ही को भेजा कि मेरे निकाह का पैगाम हजरत ज़ैनब के पास ले जाओ। और हजरत ज़ैद कहते हैं कि जब मैं उनके पास आपके निकाह का पैगाम लेकर गया तो मेरी आंखें एहतराम के मारे उठती ना थी कि ये अब नबी की बीवी बनने वाली हैं।
اور इन्होंने जाके हजरत ज़ैनब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से मशवरा कर लूं, यानी इस्तिखारा कर लूं। और उसके बाद फिर वही आ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तन्हाई में चले गए। हजरत ज़ैनब इस बात पर अज़वाज मुताहिरात में फख्र किया करती थी कि तुम्हारे निकाह तो तुम्हारे औलिया ने किए हैं, मेरा निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पर कर दिया था, हमने उसका निकाह आपसे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों के बारे में कोई तंगी ना हो, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों और अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होकर रहने वाला था। नबी पर उस बात में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने उस पर फर्ज किया है। ये अल्लाह ताला का उन लोगों के बारे में तरीका था जो इससे कबल गुजर चुके, और अल्लाह का हुक्म तो एक तयशुदा फैसला होता है। नबियों की जिंदगी आसान नहीं होती, नबी इंसान होता है। नबी को पता था कि लोगों ने मुझे इस बात पे कितनी बातें बनानी हैं, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि तुम लोगों से क्यों डरते हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरे से ही डरना चाहिए। नबी पर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए उस पर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। नबी को अल्लाह का हुक्म बिला चूनो चरा मानना चाहिए और लोगों से नहीं डरना चाहिए। और अल्लाह ताला का ये मुतालबा पहले भी अंबिया से इसी तरह था, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और अल्लाह का हुक्म तो एक तयशुदा फैसला होता है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाते हैं और वो सिर्फ अल्लाह ही से डरते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, और अल्लाह ही हिसाब लेने के लिए काफी है। मोहम्मद तुम में से तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातबुन नबीयीन हैं, और अल्लाह ताला तो हर शय को जानने वाला है। ये नस्से कतई है कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। असल में लोगों को एतराज इस बात पर था कि अगर मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करना लाजिम था तो कोई और नबी कर लेता, आप ही ने करना था। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप ही ने करना था, क्योंकि आप आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी और तो आना नहीं कि कोई और नबी इस सुन्नत पर अमल कर लेता। तो लिहाजा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हुक्म हुआ कि आप ही अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करें। और जहां तक ताल्लुक है कि आपने अपनी बहू से निकाह कर लिया, क्योंकि लोगों के अल्फाज ये थे, ये कैसा नबी है जो अपने बहू से निकाह करता है, अल्लाह के रसूल तो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है। जब बेटा ही कोई नहीं है तो बहू किधर से आ गई। आपके जो बेटे हैं बचपन में कासिम पैदा हुए, 4 साल की उम्र में फौत हो गए, उसके बाद तैयब और ताहिर एक ही बेटे के 2 नाम हैं, वो भी बचपन में फौत हो गए। आपका एक बेटा इब्राहिम था जो कि आपकी वफात से 4 महीने पहले फौत हो गया। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप ही ना थे, तब जब बेटा ही कोई नहीं था तो बहू किधर से आ गई। लिहाजा जो लोग बातें बना रहे हैं वो समझ लें कि आप किसी के बाप ही नहीं। मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह ताला तो हर शय को जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो और अल्लाह की तस्बीह सुबह और शाम किया करो। वो वही जात है जो तुम पर रहमतें बेचता है और उसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल दें। और अल्लाह ताला तो मोमिनों के साथ बहुत रहम करने वाला है। जिस दिन वो अल्लाह से मिलेंगे, अल्लाह के यहाँ उनका इस्तकबाल सलाम के साथ होगा। अस्सलामु अलैकुम इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह के यहाँ जब मुसलमानों का पहला इस्तकबाल सलाम के साथ होगा, तो इस सलाम को इंतहाई नियत के साथ और शौक के साथ दूसरे मुसलमानों को पेश किया करें। तुम पर सलामती तुम्हारे घर बार की, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे कारोबार की, इस सलामती में तमाम सलामतियां आ जाती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दुआ गैर मुस्लिम के लिए रवा नहीं रखी, जायज नहीं रखी। उस दिन उनका तोहफा, जिस दिन वो अल्लाह से मिलेंगे, सलाम होगा और अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत इज्जत वाला अजर तैयार कर रखा है।
اے نबी हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाया है, और हमने अल्लाह के हुक्म से आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाया है। नबी कई तरह से शाहिद होते हैं, अल्लाह ताला के खालिक, मालिक और माबूद बरहक होने के गवाह। ये गवाही बाज़ औक़ात ऐनुल यकीन होती है, जैसा कि अल्लाह ताला अंबिया को जमीन और आसमान की बादशाहियां दिखा देते हैं। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अल्लाह ताला ने जन्नत, दोज़ख, आसमानों का नजारा कराया था। और बाज़ औक़ात ये गवाही जो होती है ऐनुल यकीन होती है और बाज़ औक़ात अकीदे के एतबार से होती है। इसके अलावा क़यामत वाले दिन अंबिया अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे कि उन्होंने नबी की दावत को कबूल किया था या ना किया था। बाज लोग शाहिद से मुराद हाजिर नाजिर होना मुराद लेते हैं, जबकि ये बकसरत आयात कुरानी के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, इल्ला ये कि मेरे ऊपर वही की जाती है। तो लिहाजा शाहिद का माना हाजिर नाजिर ले लेना। कुरान मजीद की बहुत सी आयात इसकी मुखालिफत करती हैं। आप ये माना लेते हैं तो उन आयात कुरानी की मुखालिफत लाजिम आती है। वैसे भी हाजिर नाजिर सिर्फ एक अल्लाह के सिफत, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला के सिफत है कि वो अपने इल्मे गैब के साथ हर जगह मौजूद है, वरना अल्लाह भी अपनी जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है। और मोमिनों को बशारत दीजिए कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा फजल है, और काफरों और मुनाफिकों की अताअत न कीजिए और उनकी तकलीफों को छोड़ दीजिए, दरगुजर कर दीजिए और अल्लाह पे तवक्कुल करें, और अल्लाह ताला ही काफी है कारसाज। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तुम उनको तलाक दे दो, इससे कबल कि तुमने उन्हें छुआ हो, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं है जिसकी तुम गिनती करो। उनको फायदा दो और उन्हें रुखसत कर दो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और रुखसती से कबल तलाक दे दी तो उसकी कोई भी इद्दत नहीं होगी। जिस लम्हे तलाक दी उसी लम्हे वो औरत आजाद हो गई और किसी और से वो निकाह कर सकती है। अगर उनका मेहर मुकर्रर किया था तो निसफ मेहर दे दिया जाए, और अगर मेहर मुकर्रर नहीं किया था तो हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए। भले तरीके से रुखसत करने से मुराद ये है कि उनको इल्जामात लगाकर, बदतमीजी करके या तकलीफ पहुंचा के रुखसत ना किया जाए, और ये हमारे मुआशरे में आम है। तोहमत लगा देते हैं, इल्जामात लगा देते हैं, मारा पीटा, आधी रात को घर का दरवाजा खोला और सर से बगैर दुपट्टे के, बगैर जूती के उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। ये कबीरा गुनाह है, जबकि हमारा मुआशरा इस सिलसिले में बहुत लापरवाह है, अल्लाह के गज़ब से डरता नहीं है। ए नबी, हमने तेरे लिए तेरी वो बीवियां हलाल कर दी जिनको आप मेहर दे चुके और जो आपके दाएं हाथ में हैं, जो आपने आपको माल गनीमत में से दी हैं, और तेरे चचा की बेटियां, तेरे फुफ्फी की बेटियां, तेरे खाला की बेटियां, तेरी मामू की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया, लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। आप डरते थे, सही डरते थे। इस तूफान बदतमीजी की दो वजूहात थी। उनका कहना यह था कि एक तो इसने अपनी बहू से निकाह कर लिया, और दूसरे हमें 4 बीवियों का हुक्म देता है और खुद 5वीं कर ली, तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ज़ाबता निकाह था उसका ऐलान फरमा दिया, ताकि मुसलमान कम अज कम इस तूफान बदतमीजी से मुतासर न हो। ए नबी, हमने आपके लिए वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिनको आप अब तक मेहर देकर अपनी ज़ौजियत में ला चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो कज़न्स हैं,
आपकी चचा, मामू, खाला और फूफी की जो बेटियां हैं उनसे भी आप निकाह कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। उम्मे हानी जो आपकी चचा साथ थी, आपने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा, ये हजरत अली की बहन थी, तो उन्होंने माजरत कर ली। वो आपके लिए जायज न थी क्योंकि वो मक्के में थी और उन्होंने हिजरत न की थी। तो आपकी वो कजन, आपकी वो खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद जिन्होंने आप अभी हिजरत नहीं की, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने हिजरत कर ली हो उनसे आप निकाह कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोमिन औरत जो अपना आप नबी के लिए हिबा कर दे, अगर नबी चाहे तो उससे भी निकाह कर सकता है। अगर कोई औरत अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दे बगैर मेहर के, बगैर किसी शर्त के, तो अल्लाह के रसूल अगर पसंद करें तो ऐसी औरत से भी आप निकाह कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म की औरतों की आप अल्लाह ताला ने इजाजत दी। पहली वो औरतें जिनको आप मेहर दे के अब तक बीवियां बना चुके हैं, वो आपके लिए जायज हैं। इसके अलावा आपकी जो कजन्स हैं, अगर उन्होंने हिजरत कर ली है तो आप तब भी उन्हें निकाह में ला सकते हैं, नहीं की तो फिर नहीं। और तीसरी, अगर कोई औरत अपना आप आपको सौंप दे तो आप निकाह कर सकते हैं। हम जानते हैं जो हमने मुसलमानों पर उनकी बीवियों के बारे में फर्ज किया है और जो उनके दाएं हाथ जिसके मालिक हैं, ताकि आप पर तंगी ना रहे। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। हमें पता है हमने मुसलमानों पर 4 बीवियों का पाबंद कर दिया है और आपको हम इससे ज्यादा इजाजत दे रहे हैं। और किस लिए इजाजत दे रहे हैं? ताकि आप पर कोई तंगी ना रहे। ये तंगी नऊजुबिल्लाह क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात पूरी करने की थी? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आपने अपनी सारी जिंदगी जवानी की एक ऐसी औरत के साथ गुजारी जो कि आपसे 15 साल बड़ी थी, 2 शौहरों के पास रह चुकी थी। 50 साल की उम्र में हजरत खदीजा फौत होती हैं, जबकि हजरत खदीजा की उम्र 65 साल, अल्लाह के रसूल की उम्र 50 साल थी। उसके बाद अगले 4 साल आपने हजरत सौदा के साथ गुजारे जो कि 50 साल की थी। आपने बड़ी उम्र की औरत से शादी इसलिए की थी ताकि घर में बच्चियों की वो हिफाजत कर सकें। जब आप 54 साल की उम्र के हुए हैं तब जाके हजरत आयशा की रुखसती हुई है और आपके पास 1 से ज्यादा बीवियां हुई हैं। और उसके बाद फिर 54 साल से लेके अगले 5-6 सालों में आपने 9 बीवियां और कर, आपके वफात के वक्त आपके घर में 9 बीवियां थी, 2 बीवियां फौत हो चुकी थी। क्या ख्याल है ये आपकी ख्वाहिशात पूरी की जा रही थी? नहीं, आपने जो निकाह किए थे उन निकाहों के मकासद दीन की सरबुलंदी थी, दीन की वुसअत थी। आपने 4 निकाह तो सिर्फ इसलिए किए, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, ताकि आप अपने ताल्लुकात मजबूत कर सकें। देखिए, पहले 2 जो खुलफा हैं, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, उनकी बेटियों से आपने निकाह करके अपने ताल्लुकात उनसे मजबूत किए। जो आखिरी 2 खुलफा हैं, हजरत अली और हजरत उस्मान, उनको बेटियां देकर आपने अपने ताल्लुकात मजबूत कर किए। इसके अलावा आपने अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से निकाह कर लिया, जो उस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन था। और जिस दिन आपने निकाह किया उस दिन के बाद अबू सुफियान को आपके मुकाबले में आने की जुर्रत ना हुई। जो कुछ भी है, था तो दामाद ही, और अरबों में दामाद के खिलाफ लड़ाई करनी बड़ा बाइसे आर समझा जाता था। इसके अलावा आपने बहुत से निकाह इसलिए किए ताकि दुश्मनियां खत्म हो, ताल्लुकात मजबूत हों। हजरत सफिया बिनते हुयय के बाप को आपने जंगे खैबर में कत्ल किया था। इनको वो आपके पास लौंडी के तौर पर आई, और आप अंदाजा कर सकते हैं हजरत सफिया के खामिन को भी जंगे खैबर में कत्ल किया गया और उसके बाप को भी मुसलमानों ने कत्ल किया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल को ठंडा करने के लिए उनको आजाद फरमा दिया, उनको इस्लाम की दावत दी और उनको निकाह का पैगाम भेज दिया, उनको बुलंद मर्तबा अता किया। मुसलमान हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया। इसी तरह हजरत जुवेरिया से आपने निकाह फरमा लिया, और हजरत जुवेरिया से निकाह के बाद उनके जो खानदान के तकरीबन 100 लोग मुसलमानों के गुलाम और नौंडी बन चुके थे, वो सारे आजाद कर दिए गए। इसीलिए आप फरमाते थे कि जुवेरिया से ज्यादा कोई औरत अपने खानदान वालों के लिए बरकत वाली नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाहों में मकसद आपकी ख्वाहिशात पूरी करना न थी, बल्कि इस्लाम को वुसअत देना था,
ताल्लुकात मजबूत करने थे, दुश्मनियां खत्म करनी थी। हजरत उम्मे सलमा से आपने शादी की, इनका ताल्लुक अबू जहल के खानदान से था, इनका ताल्लुक अबू जहल के खानदान से था। इन्हीं इकदामात का नतीजा ये हुआ कि लोग जोक दर जोक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार होते चले गए। इतना बड़ा जिगरा चाहिए इन बातों को समझने के लिए और इन बातों पर अमल करने के लिए। अल्लाह ताला ने पता नहीं अपने नबी को कितना बड़ा दिल दे रखा था। हमें तो ये बातें समझ ही नहीं आती, अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसीलिए ये अल्लाह ने लफ्ज़ फरमाए कि ताकि तुझ पर कोई तंगी ना हो। किस सिलसिले में? दीन के सिलसिले में। आप इनमें से जिसको चाहें अलहदा रखें, जिसे चाहें अपने पास रखें, और जिसको चाहें अलहदा करने के पास दोबारा अपने पास बुला लें, तो आप पर कोई गुनाह नहीं। आम मुसलमानों के लिए तो ये लाजिम था, एक से ज्यादा निकाह करें तो अदल की पाबंदी लाजमी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदल की कोई पाबंदी नहीं थी। ये आयत ऐलान कर रही है, जिसको चाहें रखें, जिसको चाहें छोड़ें, जिसको चाहें छोड़ने के बाद फिर अपने पास। वजह क्या है? वजह वही कि ये सारे काम तो अल्लाह की खातिर हो रहे थे, ये काम कोई आपकी जात की खातिर तो हो नहीं रहे थे, तो आप पर कोई गुनाह नहीं। ये ज्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और अज़वाज भी गम ना करें और उस पर राजी हो जाएं जो आप उन तमाम को दे दें। अब अज़वाज की भी जरा देखिए कि उनकी आजमाइश किस कदर है, इतनी शौकने हैं और उसके साथ कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। आपको पता है कि इंसान को जब पता होता है कि मेरा किसी पे हक है तो इंसान उम्मीद भी लगाता है, इंसान शिकवा भी करता है कि तुमने इतना मेरे हामिद होने के बावजूद भी मेरी क्यों ना ख्वाहिश पूरी की, फला मेरा काम क्यों ना किया। तो अज़वाज को ये बता दिया गया था तुम्हारा कोई हक नहीं है। नबी चाहे तुम्हारे पास आए, नबी चाहे तुम्हें दें, नबी चाहे तुम्हें ना दें, नबी चाहे तुमसे बात भी ना। तो जब अज़वाज को ये पता चल गया कि हमारा कोई हक नहीं है, तो कम अज कम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनसे अच्छा सलूक करेंगे तो वो राजी हो जाएंगी, और अगर अच्छा सलूक ना करेंगे तो वो कम अज कम दुखी ना हो। कितनी बड़ी आजमाइश, कितनी बड़ी आजमाइश, जरा सोचिए तो सही। हम भी बीवियां खाने में खर्चे में मुतालबे का इजाफा करती हैं, तो आप देखिए जी तलाक की धमकी अल्लाह की तरफ से आ जाए। ठीक है, कोई हक नहीं है किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का कोई हक नहीं है, वो मुतालबा ही नहीं कर सकती। उनसे कह दिया गया ये ज्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी रहें। कैसे ठंडी रहें? उन्हें जब पता होगा हमारा हक ही कोई नहीं है, हम मुतालबा कर ही नहीं सकती, तो जो अल्लाह के नबी दे देंगे उनका दिल ठंडा हो जाएगा, ना देंगे शिकवा पैदा नहीं होगा। और वो गम न करें और वो राजी हो जाएं जो आप उन्हें दे दें तमाम की तमाम। और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह ताला जानने वाला और तहम्मुल वाला है। हम समझते हैं शायद नबी होना बड़ा आसान काम है, आप देख रहे हैं कितनी आजमाइश। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आजमाइशें ऐसी थी कि जो ही वही शुरू हुई है, आपको पता है पहली वही आई है, हजरत खदीजा को आपने क्या कहा था? मुझे अपनी जान का डर। और ये जान का डर हर लम्हा है, जान हथेली पे रखी होती थी हर वक्त। क्या ख्याल है जिस वक्त आप हिजरत कर रहे हैं, जिस वक्त कुफार ने आपका कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है, जब जंगें होती थी, एक वक्त नहीं था अल्लाह के रसूल को हर वक्त ही जान का डर है। ये आजमाइशें हैं और अल्लाह के रसूल का अपना फरमान है अशद्दुल बलाए अलल अंबियाए, सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पे होती हैं। और सबसे ज्यादा आजमाइशें चूंकि आप नबियों के सरदार थे, आप पर आपकी जिंदगी का तो एक एक लम्हा आजमाइश में ही गुजरता था। अज़वाज की आजमाइश आप देख लें, मैं एक बीवी के तौर पे सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह कैसे उन्होंने गुजारा किया होगा। अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो उन्हें इतने बुलंद मुकामात अता नहीं फरमाती है। इनसे हमें क्या सबक सीखना है, जरा सोचिए तो सही। आप भी तो बीवियां हैं, इतनी खामिन से कोई कोताही हो जाती है तो हम औरतें चीख पड़। देख लीजिए ये आयत आपको क्या सबक सिखा रही है, आप खुद पढ़ रही हैं, खुद देख रही हैं। और अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह ताला तो जानने वाला और तहम्मुल वाला है। इस हुक्म के बाद ए नबी तेरे लिए
दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते कि इनके बदले में बीवियां तब्दील कर लें। इन 4 किस्म की औरतों के अलावा दीगर औरतें आपके लिए हलाल नहीं हैं। दूसरा मफहूम यह है कि जब इन अज़वाज ने आपके साथ रूखी सूखी पे गुजारा करने का फैसला कर लिया है और उसे कबूल कर लिया है और बारी ना होने का हुक्म भी तस्लीम कर लिया है, तो आप उन्हें अब तलाक नहीं दे सकते। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि इनके बदले में एक बीवी को तलाक दे के नई बीवी बदल लें, और अगर से आपको उनका हुस्न अच्छा ही क्यों ना लगे, हाँ, कनीजों की आपको इजाजत है, और अल्लाह ताला तो हर शय पर निगरान है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में दाखिल ना हुआ करो मगर ये कि तुम्हें इजाजत खाने की तरफ बुलाया जाए, उसकी तैयारी का इंतजार न करो। और लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब तुम खाना खा लो तो चले जाओ, और किसी बातों में दिल लगाकर वहीं बैठे ना रहो। हजरत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह के सिलसिले में वलीमा किया, तो वलीमा के बाद आपने उठने का इरादा किया। कुछ लोग ऐसे बैठे कि उठने का नाम ही ना लिया। आप उठे, लोग भी उठकर चले गए, लेकिन 3 लोग वहीं बैठे रहे। आप हजरत आयशा के घर गए, 1 दफा गए, 2 दफा गए, आकर देखा अभी वो लोग बैठे हुए थे। आखिर वो लोग गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। उस वक्त ये आयात नाज़िल हुई। इस हुक्म से पहले लोग बिला तकल्लुफ लोगों के घरों में घुसे चले आते थे। अब हुक्म हो गया कि नबी के घरों में इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, और साल बाद आम लोगों के लिए भी ये हुक्म हो गया कि किसी के घर में इजाजत के बगैर नहीं जाओगे। हाँ, तुम्हें खाने की दावत दी जाए तब तुम जा सकते हो, और खाना खाओ और चले आओ। ये भी ना करो कि बैठ गए हो जी खाना पकेगा तो खाकर जाएंगे, क्योंकि इस तरह घर वाले तंग होते हैं। देखें इस्लाम ने कितनी अप टू डेट हदायत दी हैं। आज भी इन हदायत की हिकमत हमें कितनी मुफीद और कितनी अच्छी तरह समझ आती है। जब तुम खाने के पकने का इंतजार ना करो, जब तुम्हें बुलाया जाए तो चले जाओ, और जब खाना खा लो तो फिर उठ के आ जाओ। ऐसा ना हो वहां पे 4 घंटे बैठे बातें कर रहे। घर वाले को सामान समेटना है, उसे मेहमानों को डील करना है, तो तुम उसकी परेशानी में ज्यादती का बायस ना बनो। ये तमाम बातें नबी को तकलीफ देती हैं तो वो तुमसे शर्म खाता है, और अल्लाह ताला तो हक बात करने से शर्म नहीं खाता। अल्लाह के रसूल चूंकि तभी तौर पर शरीफ थे, मुरव्वत बरतते थे, ऐसी बातें आपके मुंह से ना निकलती थी, अंदर अंदर ही आप तंग होते रहते थे। तुमने जब उनसे कोई अज़वाज मुताहिरात से कोई चीज लेनी हो, उनसे कोई सामान मांगना हो, तो हिजाब के पीछे से मांगो। यही तुम्हारे दिलों के लिए पाकीज़ा तर है, और उनके दिलों के लिए भी ये पहला मौका है जब ये हिजाब का जिक्र आ रहा है। अज़वाज मुताहिरात से तुमने कोई बात पूछनी है, कोई चीज लेनी देनी है, तो हिजाब के पीछे से लो। और ये तो उनके दिलों के लिए भी पाकीज़ा तर है और तुम्हारे दिलों के लिए भी पाकीज़ा तर है। अज़वाज मुताहिरात इस उम्मत की माएँ हैं, और इस उम्मत की सबसे पाकीज़ा तरीन ख़वातीन हैं। सहाबा इस उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्द हजरात थे। उन पाकीज़ा तरीन अफराद के लिए तो बेहतर ये था कि वो हिजाब के पीछे से अज़वाज मुताहिरात से चीज मांगे, और आज हमारी औरतों के लिए बेहिजाब फिरना शायद बेहतर हो गया। ऐसी मत मार दी शैतान ने। और फिर उसके साथ जिटाई की हद ये है कि लोग कहते हैं कुरान मजीद में जी पर्दे का हुक्म नहीं है। अबे मैं कुरान पढ़ रही हूँ कि कोई और किताब पढ़ रही हूँ? शैतान जब मत मार दे उसका कोई इलाज नहीं है। और जब तुम उनसे कोई सामान मांगो तो उनसे हिजाब के पीछे से मांगो। एक बात आपके सामने रहनी चाहिए, अज़वाज मुताहिरात से अल्लाह ताला ने निकाह हराम कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद भी उनसे निकाह हराम था। इसलिए अगर वो हिजाब ना भी करते तो मेरा ख्याल है जरूरत ना थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हिजाब के साथ उनसे चीज मांगने का हुक्म दे दिया, और ये सबसे पहला हुक्म अज़वाज को दिया ताकि लोग उनको देखकर मानूस हो जाएं, और उसके बाद फिर यही अहकामात सूरह नूर में अवामुन्नास को भी दे दिए गए। और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को ईज़ा दो, और
तुम्हारे लिए ये भी जायज नहीं कि तुम उनकी बीवियों से उनके बाद निकाह करो। वो सिर्फ नाम की तुम्हारी उम्महातुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि इस पहलू से भी वो तुम्हारी माएँ हैं कि उनके साथ, माँ के साथ निकाह करना हराम होता है। बेशक ये बात अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी है। अगर तुम कोई चीज जाहिर करोगे या तुम छुपाओगे अज़वाज मुताहिरात के बारे में, दिलों में भी अगर कोई बुरा ख्याल लाए, याद रखो अल्लाह हर शय को जानता है। इन अज़वाज पर कोई गुनाह नहीं। अगर उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे और उनके मेल जोल की औरतें, उनके लौंडी गुलाम उनके घरों में दाखिल हों। हिजाब के हुक्म से उन लोगों को मुस्तस्ना कर दिया गया जो कि खूनी रिश्ते थे, और वो अज़वाज अल्लाह से डरती रहें। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और उन पर सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला की सलात से मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में आपकी तारीफ फरमाते हैं, और फरिश्तों के दरूद भेजने से मुराद दुआ है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी आप पर दरूद भेजो और आप पर सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे पास दोस्त अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। इससे शिरकिया अकीदे का इजहार होता है, लिहाजा ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये दरूद आपसे या सहाबा से साबित नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये आपसे साबित नहीं है। दरूद इब्राहिमी पढ़िए जब भी आपने पढ़ना हो। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो और आम मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी जलाबीब, अपनी बड़ी चादरें लटका लिया करें। ये ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं तो उनको तंग न किया जाए। अल्लाह को इल्म था कि लोगों ने कल को कहना है कि जी हिजाब का हुक्म तो अज़वाज मुताहिरात के लिए नाज़िल हुआ था, इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया कि नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को ये कह दीजिए कि वो अपनी बड़ी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करे। जलाबीब जो है जिलबाब की जमा है, और जिलबाब एक ऐसी चादर को कहते हैं जो सर से लेके पांव तक एक औरत ने अपनी जीनत को छुपाने के लिए ओढ़ी हुई हो। अब एक चादर, किसी फर्ज किया 3 गज भर की एक चादर एक औरत ने ली है और उसका सर से लेके पांव तक ली है। अब उसको जब लटकाया जाएगा, आप खुद अंदाजा कर लें उसका लटकाया जाना ये सूरत होगी। क्या ख्याल है, उसे कंधों से लटकाया जाएगा, क्या उसे कमर से लटकाया जाएगा? कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं पर्दे का हुक्म, चेहरे का पर्दा कुरान में नहीं है? ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। ये ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं तो उन्हें सताया ना जाए। दूसरे को पता चल जाएगा कि ये औरत जिसने अपनी जीनत को छुपाया हुआ है, ये औरत मेरे गलत मकासद में मेरा साथ नहीं देगी, ये नेक और मुत्तकी औरत है, तो उसे फिर तंग नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, ये लोग बाज और शहर में अफवाहें फैलाने वाले बाज न आए तो हम इनके खिलाफ आपको उठा खड़ा करेंगे, फिर वो थोड़ी मुद्दत ही आपके पड़ोस में रह सकेंगे। मुनाफिक लोग और यहूद मुसलमान औरतों का मजाक उड़ाते थे। ये जब रात को कज़ाए हाजत के लिए निकलते, इन पे आवाजें कसते, इन्हें तंग करते। मुसलमान औरतों को पहले हुक्म दिया गया कि वो अपनी जिलबाब जो है वो अच्छी तरह उससे अपनी कपड़ों की भी जीनत छुपाएं, अपने चेहरे की भी जीनत छुपाएं, और उसके बाद धमकी दे दी गई अगर अब भी मुनाफिक और जो अफवाहें उड़ाते हैं वो बाज ना आए तो हम अपने नबी को हुक्म देंगे कि वो इन पर हमला कर, और फिर वो इस मदीने में आपके साथ नहीं रह सकेंगे।
ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ملعونین، ان پہ لعنت کی گئی، جہاں کہیں وہ پائے گئے ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ آپ سے قبل گزر چکے، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حق و باطل کی کشمکش تو ہونی ہی ہے، اور اس کشمکش میں اللہ نے اپنے نبی کا اور مومنوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کو آوازیں کستے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، مدینے میں افواہیں اڑاتے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اگر اب بھی وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آئے تو ہم نبی کو حکم دیں گے نبی ان پر حملہ کر دے، اور جب نبی نے ان پر حملہ کر دیا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو یہاں سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نبی کے مخالفوں کے مقابلے میں ہمیشہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اپنے نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی۔ اور اللہ کی سنت میں آپ کبھی بھی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور آپ کیا جانیں شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اپنا کوئی دوست اور اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے روکا۔ لہٰذا اے لوگو، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اپنے لیڈروں کو جان لیا کرو، کس کو آپ لیڈر بنا رہے ہیں۔ اپنے خاندان میں سے بھی اگر آپ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں تو سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سیدھے راہ پر نہ ہوں، ایسا تو نہیں کہ ہمیں کل کو قیامت کو یہ کہنا پڑے کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، اے رب ہمارے انہیں دگنا عذاب دے۔ ایسے لوگ پھر اپنے ان بڑوں کے لیے اور اپنے ان لیڈروں کے لیے دگنے عذاب کی بد دعائیں کریں گے اور ان پر بڑی لعنت کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح